What is open economy? An open economy is one which interacts with other countries through various channels. What is output market? An economy can trade in goods and services with other countries. This widens choice in the sense that the consumers and producers can choose between domestic and foreign goods. What is financial market? Most often an economy can buy financial assets from other countries. This gives investors the opportunity to choose between domestic and foreign assets. Financial market क्या होता है? Most often an economy can buy financial assets from other countries. This gives investors the opportunity to choose between domestic and foreign assets. What is labor market? Firms can choose whether to locate production and workers to choose whether to where to work. There are various immigration laws which restrict the movement of labor between countries. The balance of payment record the transactions in goods, services and assets between the residents of a country with the rest of the world for a specified period of time, typically a year. क्या ये बात सही है? हाँ, the balance of payments record the transactions in goods and services and assets between the residents of a country with the rest of the world for a specified time period, typically a year. What are the two main accounts in the bank of balance of payment? एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स. सो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड रखते हैं किसका? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स का. और व्हाट डू मीन बाय बैलेंस ऑन करंट अकाउंट? करंट अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन receipts on current account are equal to the payments on the current account. सो कब अब बोलेंगे करंट अकाउंट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट बैलेंस में है. करंट अकाउंट बैलेंस में कब होता है? जब रिसीट्स ऑन करंट अकाउंट इज इक्वल टू द पेमेंट्स ऑन द करंट अकाउंट. जब रिसीट्स इन करंट अकाउंट इज इक्वल टू द पेमेंट इन करंट ऑन द पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट, तब हम बोलेंगे कि करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस में है. व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑन करंट अकाउंट? टू कंपोनेंट्स क्या है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट का? दो कंपोनेंट्स क्या है? एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस और दूसरा है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स. बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इन ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड. What is net invisible? Net invisible is the difference between the value of exports and the value of imports of invisibles of a country in a given time period. So net invisibles क्या होता है? The difference between the value of exports and the value of imports of invisibles of a country in a given time period. And the difference between the value of exports and value of imports of goods of a country को balance of trade बोला जाता है. और balance of invisibles का मतलब होता है the difference between the value of exports and the value of imports of invisibles of a country in a given time period. What is capital account? A capital account is used in accounting to record individual ownership rights of the owners of a company. So capital account is used to accounting to record individual ownership rights of the owners of a company. So current account क्या होता है? current account का मतलब होता है record of trade in goods and services and transfer of payments. और current account होता है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए इंडिविजुअल ओनरशिप का राइट्स ऑफ द ओनर्स ऑफ अ कंपनी. व्हाट डू मीन बाय बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन द कैपिटल इनफ्लोज लाइक रिसीट ऑफ लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, सेल ऑफ एसेट्स और शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज आर इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लोज लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन्स, परचेज ऑफ एसेट्स और शेयर इन फॉरेन कंट्रीज. समझ में आया? सो कैपिटल अकाउंट को हम बैलेंस में कब बोलेंगे? जब कैपिटल इनफ्लोज बराबर होगा कैपिटल आउटफ्लोज के. और बैलेंस इन करंट अकाउंट कब बोलेंगे? जब रिसीट्स ऑन कैपिटल करंट अकाउंट इज इक्वल टू द पेमेंट्स ऑन द करंट अकाउंट. जब रिसीट्स ऑन करंट अकाउंट इज इक्वल टू पेमेंट्स ऑन द करंट अकाउंट, तब हम उसको बैलेंस ऑन करंट अकाउंट बोलेंगे. और बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट कब बोलेंगे? जब बैलेंस ऑन कैपिटल बोलेंगे व्हेन कैपिटल इनफ्लोज विल बी इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लोज. जो कैपिटल इनफ्लोज है उसमें क्या क्या आएगा? रिसीट ऑफ लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, सेल्स ऑफ एसेट्स और शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज. और कैपिटल आउटफ्लोज में क्या आएगा? रीपेमेंट ऑफ लोन्स, परचेज ऑफ एसेट्स और शेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज. व्हाट इज ऑटोनोमस? इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड autonomous when transactions are made due to some reason other than
or to the other than to bridge the gap in the balance of payments, that is when they are independent of the state of balance of payment. सो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट होने करके कोई भी अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम लोग ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड ऑटोनोमस व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर मेड ड्यू टू सम रीजन अदर देन to bridge the gap in the balance of payments, that is when they are independent of the state of balance of payment. What is accommodating transactions? Accommodating transactions termed below the line items. Accommodating transactions इसका मतलब होता है below the line, so are determined by the gap in the balance of payments, that is whether there is a deficit or surplus in the balance of payment. So accommodating transactions का मतलब होता है, so accommodating transactions means termed below the line items, जो below the line items के लिए होता है. और ये कैसे डिटरमिन करते हो आप? दे आर डिटरमिन बाय द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, दैट इज आप देखते हो कि वो जो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में है या सरप्लस में है. फिर व्हाट इज़ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? दिस एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. सो इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? द एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जो एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फिक्स करता है, डिटरमिन करता है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? Increase in exchange rate implies that the price of the foreign currency or dollar in terms of the domestic currency has increased. This is called depreciation of domestic currency in terms of foreign currency. क्या बोल रहा है? Increase in exchange rate implies, depreciation का मतलब होता है increase in exchange rate implies that the price of foreign currency in terms of domestic currency has increased. जो फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है वो डोमेस्टिक करेंसी के रेस्पेक्ट में अगर बढ़ जाता है, ठीक है, सो इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट मतलब प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी हैज़ इंक्रीज्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. अब देखो यहाँ पे फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ा है ना, तो डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कम हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये डोमेस्टिक करेंसी का क्या है? डेप्रिसिएशन है. किसके टर्म्स में? फॉरेन करेंसी के टर्म्स में. फिर एप्रिसिएशन देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, इट इज़ कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी. तो जब प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज करता, व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीज करता है, तो हम उसको डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बोलते हैं. और व्हेन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज करता है, तब हम उसको एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्यूलेशन? Speculation refers to the act of conducting a financial transaction that has substantial risk of losing value but also holds the expectation of a significant gain. Without the prospect of substantial gains, there would be little motivation to engage in speculation. क्या ये बात सही है? हाँ. स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है, स्पेक्यूलेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ कंडक्टिंग ए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन. एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने का एक्ट को जहाँ पे सब्सटेंशियल रिस्क होता है कि हम उस वैल्यू को खो देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्टेशन होता है कि एक सिग्निफिकेंट गेन भी हो सकता है. सो विदाउट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द सब्सटेंशियल गेन्स, देयर वुड बी लिटिल मोटिवेशन टू एंगेज इन speculation. See you in the next video. Till then, bye.